Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start the next video in the series of current affairs mapper series. Now in this video we are going to cover the current affairs for the month of June. The current affairs that have been covered is from June 1st to June 30th. Now the whole video is divided into 15 parts: national defense security, environment, international awards and honor, index and reports. In totality there are 15 heads in which this current affair is divided. Now this is only one page and these are the exam ready notes in which you can revise the whole month current affairs in just 30 to 35 minutes. So without wasting time, let us start with the national current affairs. All of the relevant points have been absolutely covered. Over 230 plus current affairs have been covered in the 15 appropriate topics. Okay. Now if you want the PDF of this video, you can either go to the description of this video or you can see the pinned comments. You will find the link to get the PDF. Okay. Now let us start with the national current affairs. Now the first news, that is the first thing that is in news, is India's first comprehensive household income survey. Now this is going to be conducted in the year 2026 by the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is the MOSPI. Okay, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड इनकम सर्वे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय मॉस्पी एंड अ टेक्निकल ग्रुप इज ऑल्सो फॉर्म फॉर दिस पर्पज विच इज़ हेडेड बाय सुरजीत भल्ला, सुरजीत एस भल्ला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपको पता होना चाहिए. Next is Tripura has recently became the third fully literate state of India. Now in the May current affairs, the May one I've also uploaded. In the May current affairs, we have seen that Mizoram was the first state, and then in the later stages of the May month, Goa became the second state, and now Tripura has become the third fully literate state of India. Next is recently the Home Minister of India, that is Amit Shah, he inaugurated the turmeric board headquarter in Nizamabad, Telangana. This is also very very important. Okay. Next is the first kind of national consultation of gender budgeting. This was held in New Delhi, and by which ministry? So by Ministry of Women and Child Development. Okay, so the Ministry of Women and Child Development in New Delhi, they held the first kind national consultation on gender budgeting. Now first hydrogen buses in India was launched in Ladakh. India's largest Gati Shakti cargo terminal was recently inaugurated in Manesar, Haryana. Now here there is the Maruti Suzuki plant. Now this has become the India's largest Gati Shakti cargo terminal. Now two of the new Ramsar sites have also been added in the month of June. Now these Ramsar sites are from the state of Rajasthan, and the name of these are Kichan and Minar. Now talking about the GI tag, in the June month, Goa's Feni has got the GI tag, so this is also important. Next important news is about the census 2027. Now this census is going to be conducted by the Ministry of Home Affairs. Now this is the 16th decennial census, which is going to be conducted in two phases. Now the first decennial census was started in the year 1881 during the time of Lord Ripon, and talking about the first census was conducted in 1872 by Mayo. Okay. Now in 1881, first annual exercise of decennial census started. So this is important regarding census 2027 कि कौन सा वर्जन था ये census का. ठीक है. Now Bharat Gen is a multi-modal large language model which includes 22 Indian languages, and this is an AI tool. Okay. एंड यू नीड टू नो कि इसमें 22 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज अबाउट आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव. नाउ दिस आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. एंड व्हाट इज द एम ऑफ दिस आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव? The aim is for the effective delivery of the tribal development schemes. There are many schemes such as the Janman scheme, such as the Vandhan scheme. All of these schemes are related to the tribal development. So आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की PM जनमन स्कीम भी है, एंड आदि कर्मयोगी इनिशिएटिव इज ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. नेक्स्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट. Where it was inaugurated? So it was inaugurated by Indian Oil Corporation Limited in Panipat, Haryana. Okay.
So India's largest green hydrogen plant was inaugurated in Panipat, Haryana. Then India's first international agri hackathon, it was recently concluded at Pune. Now India's leopard capital. अब आपको ध्यान में ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश इसका आंसर हो सकता है, बट नहीं. पहले द लेपर्ड कैपिटल मुंबई हुआ करता था, बट रिसेंटली बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज लेपर्ड कैपिटल. नाउ सम ऑफ द न्यूज इन ब्रीफ, लेट्स सी इट. द फर्स्ट वन इज द सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन. ये सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन हमारी है. This is going to be established for addressing the financial gaps in the industries. Now this Sagarmala Finance Corporation will act as a non-banking financial corporation, NBFC. Now NBFC are regulated by RBI, ठीक है. These are also regulated by SEBI. जो भी स्टॉक से रिलेटेड होते हैं NBFC, वो SEBI रेगुलेट करता है. इंश्योरेंस रिलेटेड NBFCs are regulated by IRDAI. एंड पेंशन रिलेटेड अगर कोई NBFC है तो PFRDA उनको रेगुलेट करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑपरेशन सिंधु. नाउ ऑपरेशन सिंधु हैज़ recently been launched by the Indian government to evacuate Indian citizens from the Iran. अभी ईरान इसराइल के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था, so this is an operation which is there for to evacuate the Indian citizens from Iran. Now अंजी खाड़ ब्रिज इज इन न्यूज़ क्योंकि PM ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था. नाउ दिस अंजी खाड़ ब्रिज इज इन जम्मू एंड कश्मीर और ऑन रिवर चिनाब, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर. नाउ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की ब्रांच विल बी ओपनड इन आगरा UP एंड इट इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट द पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो रिसर्च इन इंडिया, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द उम्मीद पोर्टल. Now Umeed portal has been launched by the Ministry of Minority Affairs and what is the aim? इसका aim है डिजिटल वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू डू डिजिटल वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज गरुड़ एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी. नाउ दिस गरुड़ एग्री ड्रोन फैसिलिटी इज गोइंग टू बी ओपनड इन चेन्नई, तमिलनाडु. नेक्स्ट इज ध्रुवा इनिशिएटिव. अब ये ध्रुवा इनिशिएटिव इज एन initiative of the Department of Post and it is a digital hub for reference and unique virtual address. Okay, this is related to the postal system in India, ठीक है. ये ध्यान में रखना, this is important. Now SDG index, that is Sustainable Development Index, has been released. 2025 की रैंकिंग आ गई है and for the first time India has scored a 99th rank, ठीक है. सो क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, SDG रैंक, SDG इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे हमारा 99th है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द क्रॉपिक स्कीम. सो एज द नेम सजेस्ट क्रॉपिक इज कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स. सो ऑब्वियसली क्रॉपिक कौन से मिनिस्ट्री की स्कीम होगी, सो दिस इज द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है. नेक्स्ट इज the waste picker enumeration app. Now this waste picker enumeration app, has been launched by the Ministry of Social Justice under the Namaste scheme. So यहाँ पे आपको दो बात पता होनी चाहिए. Ministry of Social Justice की ही एक स्कीम है नमस्ते स्कीम and this waste picker enumeration app is also of Ministry of Social Justice, ठीक है. एम क्या है, so the aim is to profile and empower the waste picker across the country. जो भी कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं उनको मैप करना और उनको एम्पावर करना इन फ्यूचर. दिस इज द मेन एम ऑफ दिस ऐप. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स. नाउ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ हेली कॉमेट्स, ठीक है, इन इंडिया. नाउ हेली कॉमेट का पहला इंस्टेंस इंडिया में देखने को मिला है. सो वेयर इज दैट? सो सबसे पहले तो ये जानो व्हाट इज़ अ हेली कॉमेट. सो हेली कॉमेट इज़ अ शॉर्ट पीरियड कॉमेट दैट ऑर्बिट सन अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स. सो ये हेली एक कॉमेट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एवरी 76 ईयर. इस हेली कॉमेट के इंस्टेंसेस इंडिया में मिले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. कहाँ मिले हैं? सो इन आंध्र प्रदेश एट द श्री साइलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल में फॉर द फर्स्ट टाइम इसके इंस्टेंसेस मिले हैं, ठीक है. लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ about the Sugamya Bharat app. Now Sugamya Bharat app, it has been launched by the government of India
and it aims to improve the accessibility for persons with disability and elderly citizens. So this Sugamma Bharat app is for senior citizens. Now NV Stats India 2025 ये क्या है? So this has been launched by the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI. So अभी हमने देखा मॉस्पी ने एक तो एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 लॉन्च किया है एंड एक टेक्निकल ग्रुप हैज़ ऑल्सो बीन फॉर्म फॉर नेशनल इनकम हाउस होल्ड दैट इज़ गोइंग टू बी लेड बाय एस भल्ला. ठीक है, आई होप दोनों चीज़ें आप यहाँ पे रिकॉल कर पाओगे. सो ये माइंड मैप्स का एम ही यही होता है कि आप इफ़ेक्टिवली याद कर पाओ. जनरली अगर आप पीडीएफ्स पढ़ते हो ना तो उसमें आपको आपके दिमाग में रिटेंशन नहीं रहता है क्योंकि आप भूल जाते हो. अभी आपने ये स्ट्रक्चर याद किया ना तो आप यहाँ पे रिलेट कर लोगे कि हाँ अभी हमने 5 मिनट पहले ही मॉस्पी के बारे में एक और करंट अफेयर पढ़ा है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाव्या इनिशिएटिव. व्हाट इज़ नाव्या इनिशिएटिव? नाउ दिस इनिशिएटिव इज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ठीक है, नाउ इस इनिशिएटिव का एम क्या है? सो द एम इज़ फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग टू द गर्ल्स एज from 16 to 18 years, particularly in the non-traditional job roles. This is the aim of this Navya initiative. But aim से ज़्यादा it is important you to know that Ministry of Women and Child Development and Skill Development Ministry का ये joint initiative है. Now India's first AI powered smart traffic system is going to be installed in the Dwarka Expressway in Delhi. ठीक है, next is Digital India scheme. This scheme has completed 10th year. This is इस scheme का 10th year है इस साल. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कब लॉन्च हुई थी ये? जुलाई 1 2015 को डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी. सो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा प्रतिभा सेतु पोर्टल. ये प्रतिभा सेतु पोर्टल दिस हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द यूपीएससी. ठीक है, किन के लिए? जिन लोगों ने मेंस दिया है यूपीएससी का बट दे आर नॉट बीन सक्सेसफुल एंड उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, उन लोगों के लिए दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए. नेक्स्ट इज़ इंडिया के रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट बना है दो चीज़ों का. सबसे पहला तो इंडिया हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज फॉर द टर्म ऑफ 2025 to 28. सबसे पहला तो ये है. सेकेंड इज़ इकोसॉक का टर्म इंडिया को मिला है फ्रॉम 2026 to 2028. ठीक है, इस दो चीज़ों में, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेशनल करंट अफेयर्स जो थे इंपॉर्टेंट वंस हमारे कवर हो चुके हैं. नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक 2 दैट इज़ अबाउट द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. नाउ एज वी ऑल नो अभी ईरान एंड इजराइल एंड यूएस का कन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ईरान ने सस्पेंड कर दिया है अपना कोऑपरेशन विद द IAEA. ठीक है, रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम. Next is United Nations General Assembly has declared the year 2026 as the International Year of Women Farmers. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, सो 2026 हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स. नाउ नेक्स्ट इज वियतनाम ज्वाइंस ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री. अब दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि ब्रिक्स में अभी 10 हैं एंड सम ऑफ द पार्टनर कंट्रीज आर ऑल्सो देयर. सो वियतनाम इज रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री. बट लेटेस्ट मेंबर कौन है ब्रिक्स में ज्वाइन होने वाला? ये है इंडोनेशिया. ठीक है, नाउ 8 पार्टनर कंट्रीज हैं टोटल ब्रिक्स की, ये भी आपको पता होना चाहिए. हाँ, नेम बेशक आप मत याद रखो बट ये आपको पता होना चाहिए रिसेंटली ज्वाइन होने वाली पार्टनर कंट्री कौन सी है. नेक्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेलेक्ट किए हैं 5 नॉन परमानेंट मेंबर टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं. डिफरेंस क्या होता है परमानेंट और नॉन परमानेंट का? नॉन परमानेंट के पास में वीटो की पावर नहीं होती है, वोटिंग वीटो पावर्स नहीं होती हैं, वेयर एज जो टॉप 5 हमारी परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है. एंड इंडिया अलॉन्ग विथ ब्राज़ील and some of the other countries, Japan etc., India is very much adamant that कि UNSC में रिफॉर्म्स होने चाहिए and more permanent members should be added. ठीक है, now 5 non permanent members दो अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए कौन कौन होंगे? तो देयर आर 5 कंट्रीज. एक तो बहरीन है, सेकंड कोलंबिया है, थर्ड इज़ लातविया, फोर्थ इज़ लिबेरिया एंड फिफ्थ इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट इज़ DRC. ठीक है, अभी DRC के रिगार्डिंग M23 याद रखना या मूवमेंट 23
Now this is this is a militant group which is trying to take control over the eastern part of the Democratic Republic of Congo, which is believed to be mineral rich area. And इसी M23 की वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा में देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, बिकॉज DRC का ये मानना है कि वो M23 ग्रुप को ये रवांडा सपोर्ट कर रहा है टू डिस्टर्ब द कंट्री एज अ होल. ठीक है. नेक्स्ट लेट अस सी. US ने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में बाय इट्स B2 बॉम्बर. नाउ आपको बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नेम ऑफ द साइट्स. ठीक है, ये साइट्स पूछ सकते हैं कि ये साइट अभी रिसेंटली सीन इन न्यूज़. सो 3 साइट्स पे US ने अटैक किया है, दैट इज़ फॉर्दो, नांताज एंड इस्फाहान. दीज आर द 3 साइट्स एंड ये तीनों साइट्स जो हैं वो ईरान में हैं. ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है. ठीक है. Next is about the convention C192. Now what is this convention? Now this is the first international labor standards aimed at protecting workers from biological hazards. ठीक है. कहाँ साइन हुआ था? तो 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस अभी हेल्ड हुई थी जेनेवा में, वहाँ पे ये दिस वाज साइंड. ठीक है. कन्वेंशन C92 याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू दी लेबर प्रोटेक्शन. ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजिकल हैजार्ड्स. नेक्स्ट इज़ UN हैबिटेट जनरल असेंबली अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी, जिसमें मलेशिया एंड UAE एक्टेड एज द प्रेसिडेंट. नाउ दिस UN हैबिटेट जनरल असेंबली इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन ऑन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है. नेक्स्ट इज़ अबाउट द निकरागुआ. निकरागुआ ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया है एग्रीमेंट ऑन फिशरीज़. ना ये एग्रीमेंट ऑफ फिशरीज़ किसका है? सो दिस इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ WTO. एंड WTO की अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है नगोजी ओकोंजो इवाइला. शी इज़ द DG ऑफ WTO. ना ये जो PDF है ना, इसमें मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ना इंक्लूडेड, तो अराउंड 95% से ऊपर है करंट अफेयर्स का. बट जैसे मैंने इसको अरेंज किया है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन एंड आई कैन अश्योर यू दैट. ठीक है. Now let's move to the next question. Now this is about the CONV-EX3. What is this? So this is the largest international nuclear emergency exercise to date. Very very important question है. Now अभी ये recently conclude हुई है between the International Atomic Energy Agency and रोमानिया के बीच में. and ये exercise conduct कहाँ हुई है? ये exercise conduct हुई है रोमानिया में. रोमानिया के सर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट में दिस एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ PM ने रिसेंटली विजिट किया है क्रोएशिया एंड साइप्रस को भी विजिट किया है. तो ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ अबाउट December 4. Now December 4 has been declared as the International Day against the unilateral coercive measures. Next is about the Strait of Hormuz. Now Strait of Hormuz recently is in news because Iran ने threaten किया है that Iran is going to block the Strait of Hormuz. So you need to know कि जो ये Strait of Hormuz है, it connects the Persian Gulf with the Gulf of Oman. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ अबाउट द इंडिया नॉर्वे. इंडिया नॉर्वे के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन दी मेरीटाइम कोऑपरेशन. नेक्स्ट इज़ माउंट इटना रिसेंटली इरप्ट हुआ है एंड ये माउंट इटना कहाँ है? सो दिस माउंट इटना इज़ इन सिसली, इटली. ओके. बांग्लादेश ने रिसेंटली इशू किया है न्यू करेंसी नोट, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो फ़ोटोज़ थी, जो इमेज थी नोट से, वो रिमूव कर दी गई है. नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान ने रिसेंटली चेयर किया है एंड पाकिस्तान इज़ गोइंग टू चेयर द तालिबान सैंक्शंस कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है जर्मनी ने ओवरटेक किया है जापान को एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना कि पहले जापान था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन, अभी जर्मनी ने उसे ओवरटेक किया है. नेक्स्ट इज़ अबाउट द इफ़को's फर्स्ट ओवरसीज़ नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट. सो इफ़को का जो फर्स्ट ओवरसीज़ नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट है, ये इफ़को ने इनॉग्रेट किया है इन ब्राज़ील. नाउ नेक्स्ट है
हम थर्ड टॉपिक पे आ गए हमारे। इसके बाद हम 12 और टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का टॉपिक फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट समिट देख लेते हैं। पहली समिट जो है हमारी वो है नेटो समिट। नेटो समिट कहाँ हुई है? ये हुई है जिनेवा में। एंड हु वाज द लीडर ऑफ दिस नेटो समिट? इट वाज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। डिसीजन क्या लिया गया है इस नेटो समिट में? सो नाउ इट हैज़ बीन अग्रीड टू टारगेट ऑफ 5% ऑफ देयर जीडीपी फॉर डिफेंस स्पेंडिंग। एज वी नो दैट रशिया एंड नेटो का तो कन्फ्लिक्ट चलता ही आ रहा है, दैट इज़ वाई 5% ऑफ द जीडीपी का ये नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सपेंस करेंगी अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट में। एंड डिफेंस स्पेंडिंग पे जीडीपी का 5% दे विल स्पेंड, ठीक है। आई होप समझ आ गया ये। नेक्स्ट इज अबाउट द G7 लीडर्स समिट इन 2025। नो G7 2025 की समिट कहाँ हुई है? ये हुई है कनाडा, अल्बर्टा, कनास्किस में, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ना ये बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है बॉन, जर्मनी में। नेक्स्ट इज थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। दिस हैज़ बीन रिसेंटली कंक्लूडेड इन नाइस। नाइस इज अ प्लेस इन फ्रांस, ठीक है, NICE इन फ्रांस। Now, what was the theme of this United Nation Ocean Conference? इसकी थीम थी accelerating action and mobilizing all actors to conserve sustainable use of the ocean. Next is about the UN80 initiative. Now, UN80 initiative is an initiative that responds to issues such as conflict, displacement, inequality and climate change. So, UN80 जो initiative है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने C192 कन्वेंशन देखा था। दिस वॉज रिलेटेड टू लेबर्स को प्रोटेक्ट करना रिगार्डिंग दी बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द 113th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में हुई थी। एंड यहीं पे कन्वेंशन C192 वॉज सेंट। नेक्स्ट इज अबाउट द बैटरी समिट ऑफ 2025। नाउ बैटरी समिट ये कंडक्ट हुई है रिसेंटली न्यू दिल्ली में बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इसमें बैटरी आधार इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दिस हैज़ रिसेंटली बीन कंक्लूडेड इन जेनेवा। नेक्स्ट है रिसेंटली अमूल ने पार्टनर किया है विथ स्पेन कोवैप्स। किसके लिए? तो अमूल ने रिसेंटली, बेसिकली इतना आप समझो कि अमूल ने रिसेंटली लॉन्च किया है फ्रेश मिल्क इन द यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दी मिल्क, फ्रेश मिल्क इन EU। सो अमूल ने पार्टनर किया है स्पेन के कोवैप्स के साथ। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ICDR को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया है। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है दिस वाज हेल्ड इन फ्रांस। सो थीम क्या था? थीम क्या? शेपिंग अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड कॉन्क्लेव रिसेंटली कॉन्क्लूड हुआ है जो कि रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड इसे होस्ट किसने किया था? सो इट वाज होस्टेड बाय द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। नेक्स्ट इज अबाउट द आइटा एंड वॉट्स समिट इन गुरुग्राम। अब ये आइटा एंड वॉट्स क्या है? तो इतना समझो, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की समिट हुई थी गुरुग्राम में। एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट भी हुई थी गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम इकोनॉमी। सो इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ नहीं है हमारे पास, जितनी है हम देखते हैं। सबसे पहला तो इंडिया एनर्जी स्टैक वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड इस एम क्या था इंडिया एनर्जी स्टैक का? द एम वॉज टू क्रिएट ए यूनिफाइड एंड इंटर ऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट वॉज रिगार्डिंग एक्सियोम 4 मिशन। अब एक्सियोम 4 मिशन यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती से ऐड हो गया है, बट ठीक है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। एक्सियोम 4 मिशन इज अ स्पेस मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन दी फैल्कन 9 रॉकेट। नाउ यहाँ पे 4 कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट गए हैं, इंडिया, पोलैंड, हंगरी एंड USA। एंड इंडिया का शुभांशु शुक्ला इज गोइंग टू लीड। नेक्स्ट इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ। क्राइसिल ने फॉरकास्ट किया है इंडियन ग्रोथ को। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इंडियन GDP का ग्रोथ रेट है 6.5%। इंडियाज़ फर्स्ट ई-कॉमर्स कंपनी टू ऑफर डायरेक्ट लेंडिंग सर्विसेज, ये बनने वाली है फ्लिपकार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट रिस्क डेटा प्लेटफॉर्म इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय RBI विच इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Next is India's first BSE 1000 index fund has recently been launched by Motilal Oswal। RBI ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक कंपनी को टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी? सो द नेम ऑफ द कंपनी इज़ वाइज। ठीक है। नाउ इंडियाज़ फर्स्ट माइक्रो सब स्टेशन ये लॉन्च हुआ है न्यू दिल्ली में, टाटा पावर्स ने लॉन्च किया है जापान के साथ। अभी ये जो एक्सियोम 4 वाला एरर है ना, अब पीडीएफ में ये करेक्टेड मिलेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट करके फिर ही आप लोगों को आगे प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट इज़ अबाउट 5th टॉपिक हमारा साइंस एंड टेक। अभी तक सिर्फ हमारे 5 टॉपिक हुए हैं, 10 और बाकी हैं। तो आप समझ लो कितनी होलिस्टिकली मैंने ये करंट अफेयर्स को कवर किया है। सो स्टार्ट करते हैं। वोएजर 1 मिशन। अब ये जो हमारा वोएजर 1 मिशन है, ये मिशन है हमारे नासा का। किससे रिलेटेड है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये वोएजर 1 मिशन गया था एंड वहाँ पे इसने सुपर हीटेड प्लाज्मा को डिटेक्ट किया है बियॉन्ड प्लूटो प्लैनेट। ठीक है, प्लूटो के बियॉन्ड सुपर हीटेड प्लाज्मा को इन्होंने डिटेक्ट किया है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इसरो ने टेस्ट ट्रायल किया है मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का, और ये मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का टेस्ट कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कुशीनगर यूपी में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जाह्नवी दनगेटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू पार्टिसिपेट इन द यूएस बेस्ड टाइटन स्पेस मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा आइडन कप 3 मिशन। नाउ आइडन कप 3 मिशन इज ऑफ इटली एंड ये क्या है? दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी न्यूज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से पढ़ लेना है मल्टीपल टाइम्स एंड पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकते हैं आप। इंडियाज़ फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? ना इंडियाज़ फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च बाय द हैदराबाद बेस्ड टेक मी टू स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पार्क थेरेपी। ये थेरेपी किससे रिलेटेड है? नाउ दिस इज एन एडवांस प्रोटॉन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पार्क थेरेपी, या क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, स्पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? सो दिस इज अ प्रोटॉन बेस्ड थेरेपी। ठीक है, प्रोटॉन बेस्ड थेरेपी है ये, विच इज रिलेटेड टू कैंसर ट्रीटमेंट। ना क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन अभी रिसेंटली अचीव किया है डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली ने इसका टेस्ट किया है। नाउ नन बाइनरी एआई चिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया है चाइना ने, एंड इसके अलावा चाइना ने ऑल्सो डेवलप किया है ए साइलेंट रेडार टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज अबाउट द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। नाउ दिस QRTC हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द DRDO इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा ताइनवेन 2 मिशन। जो ताइनवेन 2 मिशन है हमारा, दिस इज एम टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द प्रिस्टाइन एस्टेरॉइड। ठीक है, ये चाइना का है। ठीक है, दिस इज मिशन इज ऑफ चाइना। नेक्स्ट इज जैंगहिंग 102। दिस इज ऑल्सो अ मिशन बाय चाइना। सैटेलाइट लॉन्च किया है फॉर नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज। दिस मिशन इज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड बाय चाइना। सो ये चाइना के 2 मिशन यहाँ पे हो गए, दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंड योटा इज़ अ कंपनी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है फॉर AI एडॉप्शन इन इंडिया। AI एडॉप्शन को ये लोग स्प्रेड करना चाह रहे हैं इंडिया में, दैट इज़ वाई दिस माइक्रोसॉफ्ट एंड योटा हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टुगेदर। नेक्स्ट देखते हैं फिर MOU for semiconductor research has recently been signed by IIT खड़गपुर and Singapore's IME। इन दोनों ने कलेक्टिवली साइन किया है। नेक्स्ट इज अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड विथ रोबोटिक सिस्टम। नाउ दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय रशिया। रीयूजेबल रॉकेट अभी टेस्ट किया है रिसेंटली होंडा कंपनी ने इन जापान। अब हेल्थ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो है XFG वेरिएंट। ये नया वेरिएंट आया है कोविड का। दिस इज़ अ न्यू कोविड वेरिएंट। नेक्स्ट इज अबाउट द नक्षत्रा। व्हाट इज दिस नक्षत्रा? नक्षत्रा इज इंडियाज फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट NIV पुणे, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर जो है दिस हैज़ बीन इस्टेब्लिश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। Recently, next news is about Botswana. Botswana has recently become the first African country to achieve the WHO gold tier in ending HIV transmission. Now, HIV, that is human immuno HIV virus recently, sorry, कौन से इससे होता है वायरस होता है? दिस इज कॉल्ड बाय रेट्रोवायरस। ठीक है।
एंड बोत्सवाना फर्स्ट कंट्री बना है टू बी इंक्लूडेड इन WHO गोल्ड टियर। नेक्स्ट इज अबाउट द बैटरी समिट, ये हमने देखा ही है। बैटरी समिट वॉज रिसेंटली हेल्ड बाय UNEP एंड नीति आयोग कलेक्टिवली। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे हमारे साइंस एंड टेक तक के तो करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। टॉपिक नंबर 6 है हमारा। नाउ सबसे पहला तो कोर्ट्स ने ऑर्डर किया है द रिस्टोरेशन ऑफ करियाचली आइलैंड। करियाचली आइलैंड कहाँ है? ये तमिलनाडु में है एंड दीज करियाचली आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर कोरल्स। नेक्स्ट इज दिस करियाचली आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। सो ये कहाँ हुआ? ये भी तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये कंडक्ट हुई है रिसेंटली न्यू दिल्ली में एंड इट वॉज चेयर्ड बाई भूपेंद्र यादव हु इज़ द इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द एवी लिस्ट। एवी लिस्ट क्या है? सो एवी लिस्ट इज द फर्स्ट यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट फॉर बर्ड स्पेसिस। नाउ एवी से आप डिराइव कर सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू बर्ड्स। ठीक है। नाउ दिस एवी लिस्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द वर्किंग ग्रुप ऑन द एवियन चेकलिस्ट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश इन द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ है सलखान फॉसिल पार्क विच इज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सलखान फॉसिल पार्क विच इज़ इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। UPPSC के लिए दिस क्वेश्चंस बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर 30x30 टारगेट्स। नाउ दिस 30x30 टारगेट्स इज अ पार्ट ऑफ द कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी प्लेटफॉर्म बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। सो आपको पता होना चाहिए 30x30 टारगेट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। नाउ एम क्या है 30x30 टारगेट्स का? इट एम्स टू कंजर्व एटलीस्ट 30% ऑफ द टेरिस्ट्रियल इनलैंड वेस्ट मरीन एंड कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। ये कहाँ पे ओपन होने वाली है? दिस इज गोइंग टू बी ओपन इन अरालम बर्ड लाइफ सेंचुरी बटरफ्लाई सेंचुरी इन केरला। इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है इन द त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। NDC, that is Nationally Determined Contribution Cooling Guidelines, has recently been released by UNEP and UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर है नायरोबी में। नेक्स्ट इज अबाउट द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट। दिल्ली में ये लॉन्च हुआ है। दिल्ली में ये कंडक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ IIT कानपुर इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है। जुलाई में ये कंडक्ट होने वाला है फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज अबाउट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा कब सेलिब्रेट होता है? ये होता है 5 जून को एंड थीम क्या है इसकी? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंडियाज फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओपनड इन दिल्ली। अब सम ऑफ द न्यूज़ इन ब्रीफ देख लेते हैं। नाउ नुव्यागिटुक ग्रीनस्टोन बेल्ट ये हमारे कनाडा में है एंड ये न्यूज़ में इसीलिए है बिकॉज द ओल्डेस्ट नोन रॉक्स ऑन द अर्थ यहाँ पे हमें मिली हैं। Next is some of the news in brief. Portulaca bharata. This is a flowering plant which is found near the Aravalli Hills near Jaipur. Next is Bankar Chedla Reservoir. ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच में है। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए एक नेचुरल बाउंड्री है दैट डिवाइड्स द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दैट इज नल्लामला हिल्स। नल्लामला हिल्स नेचुरली डिवाइड्स द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट इज अबाउट शिपकीला पास। शिपकीला पास हमारा हिमाचल प्रदेश में है एंड ये न्यूज़ में इसीलिए है बिकॉज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ओपन दिस पास फॉर टूरिस्ट। ठीक है। और सोकोत्रा आइलैंड्स ये कहाँ पे है? दिस इज़ इन इंडियन ओशन एंड इट इज़ इन इंडियन ओशन एंड इट इज़ नोन फॉर द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है अबाउट द डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो देख लेते हैं अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हम। Now, talking about the Operation Bashar al-Fateh. This operation was launched by Iran, targeting the Al Udeid air base in Qatar. यहाँ पे USA की आर्मीज़ हैं। आफ्टर अभी हमने जो देखा था USA ने अटैक किया था 3 न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान। दैन ईरान रिटेलिएटेड विद दिस ऑपरेशन बशर अल-फतह जिसमें ईरान ने अटैक किया था द US बेसिस इन कतर। ठीक है। सो ये वही ऑपरेशन है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन राइजिंग लायन। नाउ इसराइल ने जब अटैक किया था सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे मेनली नैनताज पे अटैक किया था
ठीक है, वो दैट ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जब ईरान ने रिटेलिएट किया था अगेंस्ट इजराइल, दैट वाज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन सिंधु हमने देख लिया ऊपर, विच वाज फॉर इवैक्यूएटिंग इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ईरान। नेक्स्ट इज ऑपरेशन सिक्योर, दिस वाज done to combat the cyber crime. Now law enforcement agencies from 26 countries including India's were participated in this operation secure. Next is operation spider web, very important है, बहुत important है ये। It is important because यूक्रेन ने रशिया के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया था थ्रू ड्रोन्स, एंड इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ यूक्रेन अभी तक का। यूक्रेन और रशिया की वॉर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे तगड़ा ऑपरेशन अभी तक का ये था, सक्सेसफुल भी था ये। सो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अबाउट द एक्सरसाइजेज, कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है इन द मंथ ऑफ जून। साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज विच वॉज कंडक्टेड बाय डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ इंडिया टू इन्हेंस द नेशनल साइबर रेजिलियंस सिस्टम। Tiger Claw 2025 exercise, it was the first India-US Special Forces exercise which was conducted in Chandinagar, that is in Bhagpat, Uttar Pradesh. UNAV4 exercise, what the joint Navy exercise of India and European Union। ठीक है, ये कुछ एरर आ गया, ठीक है, इसको इग्नोर करना। नेक्स्ट इज अबाउट द बाल्टॉप्स 2025। ना ये बाल्टॉप्स क्या है, बाल्टिक ऑपरेशंस एक्सरसाइज है बाय नेटो, हेल्ड हुई थी लातविया में। पासिक्स एक्सरसाइज नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट हुई थी बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूके की नेवी में। खान कोस्ट एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी मंगोलिया में एंड इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। एग्जाम्पल एक्सरसाइज शक्ति एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड ये हेल्ड हुई थी फ्रांस में। INS तमल 8th फ्रिगेट ऑफ क्रिवक क्लास जो है इंडियन नेवी में इंडक्ट हुई है रिसेंटली। रुद्रास्त्र के बारे में बात करें तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ हाइब्रिड ड्रोन दैट इज़ डेवलप्ड बाय सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। पिनाका एंड फतेह, ये दोनों एक मिसाइल सिस्टम है। पिनाका, फतेह हमारा मिसाइल सिस्टम है ईरान का। नाउ आई स्टार क्या है, इट इज़ एन इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट, ठीक है, विच विल बी एक्वायर्ड बाय DRDO इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज बैराक्टर TB2 ड्रोन्स, ये हमारे टर्की के ड्रोन्स हैं। नेक्स्ट है डसॉल्ट एविएशन ने पार्टनर किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ टू मैन्युफैक्चर राफेल फ्यूजलेज इंडिया में। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो न्यूज़ में रही हैं। सबसे पहला तो हमारा आ गया जेंडर गैप इंडेक्स। ये जेंडर गैप इंडेक्स विल बी कंडक्टेड, जेंडर गैप इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया ने इसमें सिक्योर किया है 131st रैंक। टॉप रैंक यहाँ पे आइसलैंड को मिला है। नाउ नेक्स्ट इज EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। नाउ दिस इंडेक्स में टॉप किया है कोपेनहेगन ने विच इज़ इन डेनमार्क, एंड जो लास्ट रैंक मिला है वो डमास्कस को मिला है। नेक्स्ट इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग PGI 2.0 इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टॉप किया था इसमें चंडीगढ़ ने एंड लोएस्ट रैंक मिला था इसमें मेघालय को। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। अब बात करते हैं सम ऑफ द रिपोर्ट्स की। नो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये रिलीज़ किसने की थी? सो इट वॉज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडिया को जिसमें मिली है 15th पोजीशन इन FDI डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, चाइना ने टॉप किया है इसमें एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट इज़ हंगर हॉटस्पॉट। नाउ दिस हंगर हॉटस्पॉट ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UN दोनों ने जॉइंटली लॉन्च किया है। इसमें इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सूडान, साउथ सूडान, पैलेस्टीन, हाइती, माली ये वर्स्ट इम्पैक्टेड एरियाज़ हैं बिकॉज ऑफ द हंगर। नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे अबाउट द स्किल्स फॉर फ्यूचर रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो है दिस वाज लॉन्च्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट। ना ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट जो है हमारी वो लॉन्च की है WHO ने, जिसमें कि इंडिया को लीडर बताया गया है इन कंट्रोलिंग द टोबैको। नेक्स्ट इज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इंडिया का रैंक इसमें 71st है।
नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 जिसका थीम था द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। ठीक है, इसके थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट इज जस्टिस हेमा कमेटी। नौ जस्टिस हेमा कमेटी का रिसेंटली अभी कॉन्स्टिट्यूट किया था केरला गवर्नमेंट ने, जिसमें कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स ये के लिए कमेटी फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्विस CMST रिपोर्ट। दिस हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें ये बताया गया था कि 51% ऑफ द रूरल वुमेन के पास अभी भी एक मोबाइल फ़ोन नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3 ये हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सिप्रस का, जिसको जो PM मोदी को मिला है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट इज डेविड बेकम को रिसेंटली अवॉर्डेड द नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स III। नाउ सम ऑफ द अदर अवार्ड्स। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 recently was given by president to 15 nursing staff. USISPF award recently was given to कुमार मंगलम बिरला। जावेद अख्तर को रिसेंटली अभी दोस्तोविस्की अवार्ड मिला था। लीना नायर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ऑनर एम्पायर। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स की सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में इंडिया को रिसेंटली 24 मेडल्स मिले हैं, जिसमें कि ओवरऑल रैंक इंडिया का सेकंड है एंड चाइना हैज़ टॉप्ड द रैंकिंग्स। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ऑफ 2023-25 में साउथ अफ्रीका वॉन दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज ICC हॉल ऑफ द फेम में टोटल 7 प्लेयर्स को जगह मिली है फॉर दिस ईयर एंड ये प्लेयर्स हैं हमारे MS धोनी, ग्रेम स्मिथ, हाशिम आमला, मैथ्यू हेडन, डैनियल विटोरी, सना मीर एंड सारा टेलर। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द UEFA नेशनल लीग। ना ये जो UEFA नेशनल लीग है दिस हैज़ रिसेंटली वॉन बाय द पोर्तुगल ने भी जीता है। नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा विंस द पेरिस डायमंड लीग। नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली विन किया है पेरिस डायमंड लीग, जिसमें कि 88.16 मीटर का थ्रो नीरज चोपड़ा ने किया है। नेक्स्ट इज अबाउट द फ्रेंच ओपन 2025। अब टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच ओपन, तो मेंस के कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने ये विन किया है बाय डिफीटिंग जैनिक सिनर। ठीक है, एंड वुमेंस की बात करें तो कोको गॉफ वॉन बाय डिफीटिंग आर्यना सबलैंका। नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने जीता है इन द मेंस कैटेगरी एंड एना मुजीचुक ने जीता है इन द वुमेंस कैटेगरी। 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप वॉज रिसेंटली विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड द मैस्कॉट इज विराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट इज अबाउट द F1 स्पेन ग्रैंड प्री। ऑस्कर पियास्त्री हैज़ वॉन इट। ऑन द अदर हैंड F1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की मैं बात करूँ सो जस्ट अ सेकेंड, यस, जॉर्ज रसल हैज़ वॉन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। टॉकिंग अबाउट द IPL 2025, बैंगलोर RCB हैज़ डिफीटेड पंजाब। नेक्स्ट है हमारा उलाबांतर ओपन 2025 रेसलिंग में इंडिया ने स्कोर किया है सेकेंड रैंक एंड मंगोलिया हैज़ टॉप द लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा UEFA चैम्पियंस लीग। पेरिस का एक ग्रुप है दैट इज सेंट जर्मेन, दिस वॉन द UEFA चैम्पियंस लीग। टॉकिंग अबाउट द इंडोनेशियन ओपन, एंडर्स एंटोनसन ऑफ डेनमार्क, he has won the Indonesian Open. Uzbek Cup Masters have been won by Pragnananda, who hails from India. He is an Indian chess player. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बुक्स एंड ऑथर की, सो वो भी देख लेते हैं। नो कर्नल जोगिंदर कंधारी हैज़ रिटन द बुक कश्मीर इंसर्जेंसी, डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स एंड रिविजिटिंग 1989-1990। Next is Amit Shah has recently released a book on Samvidhan Hatya Divas, so the name of the book is The Emergency Diaries. Shikhar Dhawan ने अपनी फर्स्ट बुक लॉन्च की है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द बुक नेम इज़ द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ऑड्री ट्रस्के ने लॉन्च की है बुक इंडिया 5000 Years of History on Subcontinent।
Adish C. Agarwal has launched the book Modi's Niti Shastra, The World's His Oyster. Jacinda Ardern has launched the book A Different Kind of Power, former PM of the New Zealand. Jagdish Shukla, A Billion Butterflies, A Life in a Climate and Chaos Story. This book has been launched by Jagdish Shukla. नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़. इसके बाद 3 और टॉपिक्स हमारे बचेंगे. द फर्स्ट इज़ बिहार में लॉन्च होने वाला है. बिहार इज़ गोइंग टू इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट. नाउ ये जो पावर प्लांट है, दिस इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हुआ है टू द कंट्री गियना एंड ये भी बिहार से ही एक्सपोर्ट हुआ है. ओके, नेक्स्ट है हमारा कास्ट सेंसस इन हिमाचल प्रदेश. रिसेंटली अभी कंडक्ट होने वाला है कास्ट सेंसस इन हिमाचल प्रदेश. उत्तर प्रदेश में राइनो कंजर्वेशन पोर्टल इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द दूधवा नेशनल पार्क. नेक्स्ट इज बिहार हैज़ बीन असाइंड 6 न्यू एयरपोर्ट्स अंडर द उड़ान स्कीम. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एयरपोर्ट्स? मधुबनी, सुपौल, वेस्ट चंपारण, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा. इन सारे एरियाज़ में 6 एयरपोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होने वाले हैं अंडर दी उड़ान स्कीम. नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एबरदीन का फर्स्ट इंडियन कैंपस इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन नवी मुंबई. शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी इस्टेब्लिश, दिस इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पवनार इन वर्धा टू पत्रा देवी ऑन द हिमाचल गोवा बॉर्डर. सो दिस is an Maharashtra to Goa expressway, Shaktipeeth expressway. नेक्स्ट इज जल गंगा संवर्धन अभियान. ये मध्य प्रदेश का एक इनिशिएटिव है फॉर वाटर कंजर्वेशन. ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज अंडर अ सिंगल पोर्टल. ठीक है, एंड इस पोर्टल का नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट विथूट. Vituth is a program of Kerala which is related to afforestation. Vituth is a afforestation program of Kerala. Next is about the Tamil Nadu. Tamil Nadu is going to establish its first greater flamingo sanctuary as Dhanushkodi. So Dhanushkodi में तमिलनाडु establish करने वाला है its flamingo sanctuary. Next is about Goa. Recently Goa has been declared as fully लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम. मैंने बता ही दिया था आपको. थर्ड स्टेट जो अभी त्रिपुरा बना है, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नेक्स्ट इज अबाउट तेलंगाना. नाउ कुमारम भीम कंजर्वेशन सेंटर कंजर्वेशन रिजर्व इन तेलंगाना इज डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व. ऑल्सो तेलंगाना ने साइन किया है अ पैक्ट विद जापान किटायूशु फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है लेवेंडर फेस्टिवल विच इज़ इन दी भदरवा डिस्ट्रिक्ट. ओडिशा ने अंकुर स्कीम को लॉन्च किया है. अंकुर स्कीम का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स. नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश एंड एनवीडिया विच इज़ अ ग्राफिक चिप मेकिंग कंपनी. इन्होंने साइन किया है MOU फॉर द AI इकोसिस्टम. ना इसके अलावा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड 2 और न्यूज़ है जो मैंने यहीं पे कवर कर दी हैं. सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश ने तलिक्की वंदनम स्कीम लॉन्च किया है फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस. ऑल्सो आंध्र प्रदेश हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली टू लॉन्च इन अमरावती. इंडिया की फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली वो अमरावती में लॉन्च होने वाली है इन आंध्र प्रदेश. गुजरात की बात करें तो गुजरात हैज़ बिकम गुजरात को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है फॉर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अपॉइंटमेंट्स. नाउ पहला है हमारा लुइस मोंटेनेग्रो हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगल. ज़ोउ ज़ियाई हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, बीजिंग चाइना. Talking about Anuradha Thakur has become the first woman secretary of the Department of Economic Affairs, that is DEA. So ये second and third point are very very important. Annalena Baerbock has become the president of the 80th sessions of the United Nations General Assembly. Next is Karol Nawrocki has become the president of Poland.
नेक्स्ट है हमारा गोम्बोजव जमदाशत्र हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया. Xi Jinping has become the South Korean new president. Also, South Korea recently has become the newest country to launch its own space agency. अपनी स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाली साउथ कोरिया यहाँ पे बहुत लेटेस्ट कंट्री बन गई है. नेक्स्ट इज अबाउट द यशस्वी सोलंकी. नाउ यशस्वी सोलंकी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन नेवी ऑफिसर टू बिकम द प्रेसिडेंट्स आई.डे कैंप. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आई.डे कैंप बनी है यशस्वी सोलंकी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज अबाउट एस महेंद्र देव. एस महेंद्र देव हैज़ रिसेंटली बिकम द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द पीएम. ठीक है, इसके पहले इफ आई टॉक अबाउट हु वाज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, सो सुमन के बेरी. सुमन के बेरी प्रीवियसली वॉज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, बट अभी एस महेंद्र देव बन गए. नेक्स्ट इज अबाउट द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th FC मतलब फाइनेंस कमीशन. सो टी रविशंकर हु इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द RBI, ये अभी पार्ट टाइम मेंबर बने हैं ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. नाउ 16th फाइनेंस कमीशन की बात करूँ तो इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन का नाम क्या है? सो अरविंद पंगारिया. अरविंद पंगारिया इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. एंड अगर फाइनेंस कमीशन की मैं बात करूं सो दिस इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. एंड इसका काम क्या होता है? डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द आर्टिकल, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस, द फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में मिनिमम पता होनी चाहिए टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन एग्जाम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द ब्रांड एम्बेसडर. सम ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में न्यूज़ है, वो देख लेते हैं. सबसे पहला तो इट्स अबाउट शुभमन गिल. शुभमन गिल को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ओकली आईवीआर ब्रांड. टॉकिंग अबाउट श्रद्धा कपूर. श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है यूरेका फॉर्ब्स का रिसेंटली. कटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अनाउंस किया गया है मालदीव्स का. ठीक है, एंड एक न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए चैगोस आइलैंड के बारे में. सो चैगोस आइलैंड की मैं बात करूं जो कि पहले यूके के पास था, यूके ने भी रिसेंटली मॉरिशस को सोवरेनिटी दे दी है ऑफ द चैगोस आइलैंड. ठीक है, एंड चैगोस आइलैंड हमारा इंडियन ओशन में है. एक और हमने इंडियन ओशन में देखा था आइलैंड, दैट इज़ सोकोत्रा आइलैंड, जो अभी पढ़ा भी हमने इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में. सो ये आप ध्यान में रखना, दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम डील करते हैं अबाउट दी ओबिटुअरीज, इंपॉर्टेंट ओबिटुअरीज. सबसे पहला HS वेंकटेश मूर्ति. ही वॉज एन कन्नड़ा पोएट. इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज अबाउट द संजय मोंगा. संजय मोंगा वॉज अ नेचरिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट. विजय रूपानी के बारे में बात करें सो ही वॉज द फॉर्मर गुजरात CM एंड ही अनफॉर्चुनेटली डाइड इन द अहमदाबाद प्लेन क्रैश. ठीक है, अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो प्लेन था वो बोइंग का था एंड एयर इंडिया का प्लेन था. ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन बस पता रहनी चाहिए आपको, ये तो पता ही होगी आई गेस. वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट. सो विजय रूपानी वॉज द फॉर्मर गुजरात CM. नेक्स्ट इज अबाउट मंगला भट्ट. मंगला भट्ट वॉज अ रिनोड कथक एक्सपोनेंट. नेक्स्ट इज मारुति चीतमपल्ली. ही वॉज एन इन्वायरमेंटलिस्ट एंड अ पद्मश्री अवॉर्डी. तो जैसे ही ये पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है. नेक्स्ट इज अबाउट दिलीप जोशी. दिलीप जोशी वॉज अ फेमस इंडियन स्पिनर एंड इट इज़ रिलेटेड टू ऑब्वियसली हमारा क्रिकेट. अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेज जो कि जून के मंथ में आते हैं. सबसे पहला तो हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. नाउ दिस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन June 7. एंड टॉकिंग अबाउट द थीम, इस साल की थीम है फूड सेफ्टी दैट इज़ साइंस इन एक्शन. वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में बात करूं तो ये सेलिब्रेट होता है June 8 को एंड इसकी थीम क्या थी? वंडर, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस. नॉट टॉकिंग अबाउट द ओशियन, तो हाई सीज ट्रीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. हाई सीज ट्रीटी, ठीक है, ये साइन हुई थी अंडर द अनक्लॉस एग्रीमेंट. अनक्लॉस ने साइन करवाया था एंड दिस ट्रीटी इज़ बाइंडिंग.
ठीक है, इसके बेसिक का लॉजिक ये है कि जो भी किसी भी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, विच इज़ नोन एज EEZ। इसका मतलब ये है कि जितनी भी एरिया होगा 200 नॉटिकल माइल्स का, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उस रिसोर्सेज को यूज़ करने का राइट वो कंट्री के पास में होगा जो उसकी कोस्ट को शेयर करेगा। जैसे इंडिया का अगर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री देखें तो वेस्टर्न बाउंड्री में अरेबियन सी है एंड ईस्टर्न बाउंड्री में बे ऑफ बंगाल है। तो 200 नॉटिकल माइल का तक का एरिया जो है दैट इज़ नोन एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एंड इसके बाद का जो द एरिया विच इज़ लार्जर दैन 200 नॉटिकल माइल्स दैट इज़ नोन एज द हाई सीज। ठीक है, एंड इस हाई सीज के एरिया के रिगार्डिंग ये ट्रीटी साइन की गई है कि जुरिस्डिक्शन का क्या इसमें इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ओशन के रिगार्डिंग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर दिया। सो वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 8 एंड इसकी थीम क्या थी? वंडर, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ठीक है, वेरी नाइस थीम, बहुत ही फार साइटेड थीम है ये। नेक्स्ट इज UN ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है द फर्स्ट UN इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशंस। ये हमारा सेलिब्रेट होगा June 10 को। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्लोबल विंड डे। नाउ दिस ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 15 एंड थीम क्या था इसका? डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। अब आपको मुझे बताना है विंड रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, सो ऑब्वियसली इट इज़ एन रीन्यूएबल सोर्स। सो विंड रिसोर्सेज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोटेंशियल जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर रिसेंटली। अब ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में है बट ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने डेसिग्नेट किया है ईयर 2025 to 35, मतलब ये 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का क्या मतलब होता है? डिकेड ही तो मतलब होता है। सो ये 10 ईयर्स के टेन्योर को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर यहाँ पे डेजिग्नेट किया है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश में वी नो दैट ब्रह्मपुत्रा का जो मेजोरिटी ब्रह्मपुत्र इंडिया में फ्लो करती है वो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में करती है। एंड इसके बाद अगर बेसिन की बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की तो वो है असम में। सो ऑब्वियसली अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। सो दैट इज़ वाई ये 10 ईयर का टेन्योर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर बाय अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल योगा डे। अभी इंटरनेशनल योगा डे June 21 को सेलिब्रेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस साल की थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। नाउ ये सेलिब्रेट कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में 21 इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था ऑफ द ईयर 2025। अगर मैं 2024 की बात करूँ तो इंटरनेशनल योगा डे श्रीनगर में सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, सो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्या है? संविधान हत्या दिवस। ना ये आपको पता ही होगा, June 25 1975 में इमरजेंसी इम्पोज की थी इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, तो दैट डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज संविधान हत्या दिवस। नाउ 1975 की जो इमरजेंसी हुई थी उसके बाद ही हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, सॉरी 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था। ओह कंफ्यूज होगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस एक्ट में क्या किया था? जितने भी प्रोविजंस थे जो कि अल्टीरियर प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसे मिसयूज़ करके इमरजेंसी लगाई गई थी इन द ईयर 1975, वो सारे प्रोविजंस को चेंज किया गया था। एंड जो नेशनल इमरजेंसी में क्लॉज था, नेशनल इमरजेंसी हमारे आर्टिकल 352 में है, जिसमें कि डिक्लेयर किया गया है कि इमरजेंसी हो सकती है ऑन द वॉर, ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये 3 कंडीशंस पहले दी हुई थी, या तो वॉर के ग्राउंड्स पे हो सकता है या एक्सटर्नल एग्रेशन और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो 1975 में इमरजेंसी में जो पावर मिसयूज हुई थी उसके बाद बाय दिस अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट दिस इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज द वर्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वाज चेंज्ड बाय द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन। सो अब
आर्म रिबेलियन। सो अब इफ़ एमरजेंसी इज इम्पोज्ड, सो या तो वॉर के ग्राउंड पे होगी या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिमूव ही कर दिया गया क्योंकि 1975 में एमरजेंसी इम्पोज हुई थी। ठीक है, तो ये एमरजेंसी का ही देन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल्स को सही किया गया। सो ये हमारा जून 25 को सेलिब्रेट होता है। सो विद दिस वी आर डन विद द जून करेंट अफेयर्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पिन कमेंट्स चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वीडियो का, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को अगर वीडियो अच्छी लगी। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।